गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Most humble salutations at the lotus feet of our beloved Bhagwan. Sai Ram to brothers, sisters, and elders and children. Today we have our 5th session of Veda Sadhana Varga, and today we'll be seeing the basic grammar that is to be followed to chant Veda correctly. अभी ये वेदा में ग्रामर क्यों चाहिए? क्योंकि वेदा जो है ये संस्कृत लैंग्वेज में है, एंड संस्कृत लैंग्वेज में हम लोग को हमारे क्या होता है, हमारे जो भारत में इतने सारे लैंग्वेजेस है, तो वो लैंग्वेजेस सारे संस्कृत से ही आया है, लेकिन क्या होता है कि हमारे मातृभाषा जो है उसमें थोड़ा हमारा रीजनल इन्फ्लुएंस आता है। हमारे एक एक अलग अलग रीजन में एक ही अक्षर को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो जब भी हम लोग वेद चांट करते हैं तो ये जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो वेदा में नहीं आना चाहिए। It should be chanted as it is chanted in Sanskrit. So let us now see quickly what are the basic necessities in grammar that is required to chant Veda correctly. So now, with Bhagwan's blessings, let us begin the first session. Now in this session we have 3 separate parts. The first one being vowels. So let us all go back to our school days and let us see the Varnamala. So in the Varnamala we have the vowels. Vowels are a, I, U, R, L, A, I, O, Au, and Aha. And Aha we will see separately. Now we will see these vowels, how to pronounce them properly. Now all the aksharas are pronounced as they are pronounced from the different parts of the mouth. So there are 5 different ways of pronouncing. So now the first one being Kanthya. Kanthya is of course not a part of the mouth, but the sound has to come from the throat. But when the sound comes from the throat, we have to see the position of the mouth, how the position will be. So first is A. It is not A, it is A. A is the first letter, and A. A is the Dirgha Matra added to A. A is Hraswa, means it is a simple A letter. And if you add a Matra to it, it becomes A. So A and A are originated from the
throat, that is kanthya. So when you say a, it will be, this is the position of the mouth, a. And when you say a, we have to open our mouth wide to say a. Now the examples here are aham, aghora. Aham and aghora for a, and for the examples for a are avyadhini, and we say murdha. When we say murdha, a ki matra is there and the mouth is opened widely. Next is talavya. Talavya means when we are pronouncing these letters, it is from the palate. So Indra, when you say Indra, the palate is the main place from where the tongue is moving in the mouth and the sound is originated. So it is Indra, and the example is Brahmani. Brahmani. Now here the next two letters in the Varnamala are E and E. So after A and A, next two are E and E. So E, the examples are Indra and Brahmani. And for examples for E are Ishwar and Devi. E. So these are the two Talavya Aksharas. Going to the next two, that is U and U. U and U are Oshtya letters. So U, when you say U and U, the mouth is like the lips come closer vertically. Horizontally. U and U. So Umapate is the example and Madhu is the example. And for U, it is Urdhva and Uru. So the lips don't touch each other, the upper lip and the lower lip, but they come close. So that is U and U. Then the next one is R and R. So R for Rishi and Matra. So here sound has to come. Here it is not Ru or Ra. It is R. And these R and R are the Murdhanya letters. So R, when you say R and R, you can actually feel the tongue going up to the roof of the mouth. And then we have R and R, L and L. That is Dantya. L and L. L and L, right? Yes, correct. Yeah. So these are called Dantya. Dantya. L and L. So these are the Dantya Aksharas. Then we have O and, next slide please, A and I. A is a combination of A and E. So that is A is Kanthya and E is Talavya. So when A is combined with E, A is combined with E, then the letter A is formed. Examples are Evam, then Bahave. These are the examples for A. A should not be mispronounced as Ye. Ye, Ya is a different letter, it's a consonant, and
A is A only. It is not ye. Ye and A are different. Then we have I. I is a combination of A and E. A is a Kanthya letter and E is a Talavya letter. So A and I. Evam and Bahave are the examples for A, and Aishwarya and Tasmai are the examples of I. I also should be pronounced as I, not A. It is I. A and I. The next one is O and OU. O is a combination of A and U. And OU is a combination of A and U. It is O, A is Kanthya and U is Osthya. A is Kanthya and U is again Osthya. So O and OU are the combination of Kanthya and Osthya. Examples are for O, Om and Namo. Namo and Om. For OU, the examples are Audbhidyam and Tejasvinau. Audbhidyam and Tejasvinau. These are the examples of O and OU. Now the aksharas and aha will be taken up separately. That is, is anuswara and aha is visarga. So now next we will see the consonants, and after that we will see anuswara and visarga. So over to Siddharth. Sai Sudhaji, Sai Ram. I would just request you that you can also reiterate for R and L lip position, because that is a point of regular confusion for learners. They will say Ru or Ri, so you can just clarify. Yeah, okay. Now, R for Rishi. Even in the past sessions, whenever we came across R word, we had specifically mentioned that it is not Ru or it is not Ra. It is not Rashi or Rushi. It is Rishi. So that pronunciation of has to come when we pronounce Rishi. Similarly, Matru, Tru, again. And in Kliptam, when we say it is Kliptam, here the R is silent. Though in the transliteration the R is there, R is not pronounced. It is Kliptam. Okay, so these two are the very common words which are mispronounced. So again, R, similarly Gr, then Matru. These are the letters where R is pronounced. Over to Siddharth for the consonants. Sai Ram. ओम श्री साई राम. अभी मैं हिंदी में बताता हूँ. व्यंजन जो हमारे संस्कृत भाषा में है उनके साथ थोड़ा परिचित होते हैं. यहाँ पर बहुत सारी जरूरी बातें हैं जो थोड़ा सा ध्यान दीजिए. बहुत अच्छी व्यवस्था की है संस्कृत भाषा में, तो खास इस पर थोड़ा गौर करेंगे तो अच्छा रहेगा. जैसे आप देख रहे हैं, एक चित्र दिखाया गया है कि उस ध्वनि का उद्भव कहाँ से होता है. और यहाँ पर प्रथम हमने दिखाया है तो क वर्ग, यानी कि जो कंठ्य वर्ग है, क ख ग घ ङ. सभी से एक अनुरोध है, आप भी साथ में बोलिए. मतलब जब हम पढ़ रहे हैं तभी आप भी साथ में बोलिए, तो आप भी अनुभव कर पाएंगे कि
सारे जो आवाज है यहीं से कंठ से निकलती हैं, क ख ग घ ङ. You can touch your throat while chanting and you will see that specifically there is some stress when you are chanting these letters. Ka, kha, ga, kha, nga. So these are called kanthya, that is emanating from the throat. और उनमें फिर और भी विशेष ज्यादा हम समय नहीं बिताएंगे, लेकिन जैसे कि कभी कभी क और ख में अंतर करना भूल जाते हैं लोग, तो ख के बदले क बोलते हैं. तो ये सब हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए. इसीलिए सारे जो वर्ण है यानी कि अक्षर है, क और ख में अंतर है प्राण का. ख में ज्यादा मात्रा में प्राण बाहर आता है, मतलब सांस बाहर आती है, तो इसलिए ख या घ इनको महाप्राण अक्षर भी कहा जाता है. उदाहरण सारे यहाँ दिए गए, हर एक मैं पढ़ता नहीं हूं, नहीं तो समय बहुत ज्यादा चला जाएगा. परंतु ये 5 अक्षर ऐसे एक साथ हैं क्योंकि ये सारे अक्षर कंठ से, थ्रू द थ्रोट दे आर प्रोनाउंस्ड. क ख ग घ ङ सारों में कंठ का प्रयोग है उच्चारण में. उसके आगे चलते हैं च वर्ग, यानी कि दूसरा जो वर्ग है, च छ ज झ ञ. यहाँ पर क्या है देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है उसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा आगे की तरफ होना चाहिए. यहाँ पर ये जो जीभ आपके मुख के ऊपरी हिस्से में थोड़ा पीछे नहीं, यहाँ आगे टच होना चाहिए. आप भी देख सकते हैं, आप साथ में दोहराइए, च छ ज झ ञ. जब आप ये उच्चार करते हैं तब आपका टंग जो है मुख के ऊपरी हिस्से के अगले हिस्से पर टच होता है, वहां पे स्पर्श होता है. च छ आप देख सकते हैं, तो ये आप अनुभव कर सकते हैं कि सारे यहीं के आसपास, अगले हिस्से के आसपास वहीं पे स्पर्श हो रहा है जीभ आपका, और इसलिए ये सब उच्चार आपके आते हैं. कहीं और उच्चार करके कहीं और स्पर्श करके देखिए, जीभ को दाहिने हिस्से पर मुख के करके देखिए, क्या आप च का उच्चार नहीं कर पाओगे. बिल्कुल जीभ जब वहां पे टकराते तब ये उच्चार हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता. इनको तालव्य अक्षर के, तो इस भाग को जो ऊपरी हिस्से का अगला भाग है उसे तालु कहते हैं, इसलिए तालव्य अक्षर इन्हें कहा जाता है. यहाँ पर भी च और ज जो है, पहला और तीसरा अक्षर, ये अल्प प्राण अक्षर है. उन्हीं के महाप्राण अक्षर छ और झ, जिसमें सांस बाहर निकलती है. अगर आपको पता चलना है कि हम सही उच्चार कर रहे हैं या नहीं, उदाहरण के लिए ज और झ, अपने मुख के सामने आप अपना हाथ रखिए. ज, ज्यादा सांस आपको महसूस नहीं होगी हाथ पर. झ, बहुत सारा सांस आपके हाथ पर आपको महसूस होगा. तो इस तरीके से अगर कोई झ है और आपको पता चलना है कि हम सही उच्चार कर रहे हैं या नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अपने मुख के सामने रखे आप उच्चार कीजिए छ. अगर हवा बहुत सारा लग रहा है तो मतलब महाप्राण अक्षर का उच्चार सही हो रहा है आपके द्वारा. और एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, एक बार सभी जने ये कीजिए, नाक पकड़ लीजिए और फिर ये पूरा दोहराइए, च छ ज झ ङ. तो यहाँ पर पहले 4 अक्षर नाक का बिल्कुल प्रयोग नहीं है, इसलिए बिल्कुल कंठ से आवाज ध्वनि बाहर आती है, इसलिए च छ ज झ इनका उच्चार नाक पकड़ के या छोड़कर एक समान होता है. लेकिन जो 5वां अक्षर है वो नासिक अक्षर है, अनुनासिक अक्षर है, यानी कि उसमें ध्वनि नाक के माध्यम से निकलती है, इसलिए ञ और ङ दोनों में अंतर होता है. क्योंकि अगर नाक को पकड़ लिया तो ध्वनि ठीक तरीके से नाक से निकल नहीं पाती, इसलिए जो अनुनासिक अक्षर है, 5वां अक्षर हर एक वर्ग का, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, सारे अक्षरों का उच्चार नाक के माध्यम से, मतलब 5वें अक्षर का उच्चार नाक के माध्यम से होता है. अनुनासिक अक्षर इन्हें कहते हैं. इसके बारे में विस्तार रूप में साई सुधा जी आगे बताएंगी जब हम अनुस्वार यानी कि अम के बारे में जब चर्चा करेंगे. अगला वर्ग है ट वर्ग. ट ठ ड ढ
और अण। यहाँ पर बहुत बार कंफ्यूजन हो सकता है कि पांचवा अक्षर क्या है। कभी कभी न बोल लेते हैं लोग, परंतु वह न नहीं है, अण। इसमें अंतर कैसे किया जाए? चित्र को देखिए, यहाँ पर जीभ आपकी मुख के ऊपरी हिस्से के पिछले भाग पर टकराती है, इसलिए आप खुद एक बार उच्चार करके देखिए जीभ कहाँ है। त। पीछे स्पर्श किए बिना ट का उच्चार नहीं होता। त, थ, ड, ढ। इसलिए जो शब्द है हिंदी में घंटा, वहां पे ट क्यों है? क्योंकि वो टच होके आता है तो ध्वनि उस तरीके से निकलती है, इसलिए। त, थ, ड, ढ, ण। अण और न, इनमें अंतर क्या है? अण में जीभ पीछे की तरफ है, न में आगे की तरफ दांतों के पास है। इसके बारे में और आगे हम देखेंगे, परंतु अण अक्षर उच्चार करते समय जीभ मूर्धा की तरफ, यानी कि जो मुख का सबसे ऊपरी हिस्सा है उसकी तरफ होगा, अण। उसके बाद का वर्ग है त वर्ग, यानी कि दंत्य वर्ग। दांतों के साथ इसका उच्चार होता है, यानी कि जीभ और दांत इन दोनों के बीच में स्पर्श होता है। आप साथ में ही बोल लीजिए, त, थ, द, ध, न। अब यहां पर और एक बार, दांत को जीभ लगे बिना इन सब अक्षरों का उच्चार करने की कोशिश कीजिए, नहीं कर सकते। ख, 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 ख। जब तक आपका जीभ दांत पर टकराता नहीं, त का उच्चार आप नहीं कर सकते। तो जीभ जहां जहां टकराता है मुख के अंदर, उसी पर आधारित ये सारी वर्णमाला है, यानी कि जो अक्षरमाला है। सारे अक्षर, उसे अक्षर कहते हैं क्योंकि कभी भी उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये कंठ्य वर्ग का महाप्राण कहने से एक ही अक्षर है, ख और घ है। तो ऐसे जैसे दंत्य वर्ग का महाप्राण यानी कि थ और ध, अक्षर इन्हें बदला ही नहीं जा सकता। अगर आपने स्पेसिफाई, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, इस गली में इस नंबर का घर, तो सही पता लग जाता है। वैसे ही यहाँ पर वर्गीकरण भी है और अल्पप्राण महाप्राण का अंतर भी है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा अक्षर किस तरीके का है। ये बदले नहीं जा सकते, क्योंकि जीभ सभी को एक समान दी है भगवान ने, मुख सभी को एक समान दिया है, इसका मतलब उच्चार भी सभी का एक समान ही होगा संस्कृत भाषा का। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन मैं ज्यादा उस पर समय नहीं बिताता हूं। त और द अल्पप्राण अक्षर है, थ और ध ये महाप्राण अक्षर है, न अनुनासिक अक्षर है, न अंतर आता है। नाक पकड़ने से नाक के अंदर से हवा का प्रवाह ठीक से हो नहीं पाता और उच्चार ठीक से नहीं हो पाता। करके देखिए, न, न, नाक बंद करने से अनुनासिक अक्षर का उच्चार सही नहीं हो पाता, इसलिए नाक जब बंद होती है तभी हमें हमारा उच्चार बदल जाता है, क्योंकि अनुनासिक अक्षर सारे ठीक से नहीं हम उच्चार कर पाते। अगला वर्ग है प वर्ग, जिसमें 5 अक्षर दोबारा है, प, फ, ब, भ और म। यहां पर जो द्वितीय अक्षर है जिस पर अभी पॉइंटर रखा हुआ है, वो फ अक्षर है, फ अक्षर नहीं है। यानी कि हम अगर फल, फ्रूट्स को बोलते हैं फल, तो फल बोलते हैं, फल नहीं बोलते। फ अक्षर फारसी भाषा में प्रचलित अक्षर है, और इसीलिए जो हिंदुस्तानी भाषा है जिसमें उर्दू और हिंदी का मेल है, उसमें फ अक्षर बहुत बार पाया जाता है, परंतु वो संस्कृत भाषा का अक्षर नहीं। संस्कृत भाषा में फ यही अक्षर है। और इसका प्रमाण अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो जीभ, यहाँ पर दोबारा यह एरो गलत जगह आ गया है। यहाँ पे दोनों जीभ जब एक दूसरे को छूते हैं तब ये प वर्ग के अक्षर हम उच्चार कर पाते हैं। आप देख लीजिए, प, फ, ब, भ, म, सभी में दोनों जीभ टकराने चाहिए। अगर जीभ दोनों एक साथ नहीं आए तो उच्चार नहीं हो सकता है। कोशिश कीजिए, क, प का उच्चार दोनों होंठ एक साथ मिलने के बिना नहीं कर सकते। जीभ का पोजीशन पीछे रहता है, लेकिन दोनों होंठ एक साथ मिलेंगे तब प अक्षर का आप उच्चार कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा अक्षर है फ।
क्योंकि इस पूरे वर्ग में दोनों होंठ एक दूसरे को छूने चाहिए। हालांकि फ बोलने से दांत और होंठ के बीच में फ ये उच्चार होता है, और वो इस वर्ग से मेल नहीं खाता। इस वर्ग में सारे अक्षरों का उच्चार दोनों होंठ छूते हुए करना है। प, फ, ब, भ, म। फ अक्षर होता है, फ अक्षर नहीं होता। ये इस बात पर ध्यान दीजिए। फ अक्षर काफी बार आता है संस्कृत भाषा में और वेदों में भी, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि फ उच्चार नहीं करना है, फ ये सही उच्चार है इसका। इसके आगे हम देखेंगे कुछ और भी अक्षर हैं जिन्हें अवर्गीय अक्षर कहा जाता है, क्योंकि ये 5 वर्गों में नहीं बांटे गए हैं, अलग से हैं। यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए य, र, ल, व, और एक और अक्षर है जो हिंदी भाषा में नहीं पाया जाता लेकिन मराठी भाषा में प्रचलित है, वह है अड़, जो यहाँ पर चौथे नंबर पर यहाँ दिखाया गया है। अड़ अक्षर जो है यह संस्कृत भाषा में पाया जाता है, पर मूल रूप से ऋग्वेद के मंत्रों में पाया जाता है। यजुर्वेद में अड़ा का उच्चार नहीं पाया जाता, तो ऋग्वेद जो सीखते हैं उनके लिए अड़ अक्षर का उच्चार सही होना चाहिए। ऋग्वेद की पहली पंक्ति में ही यह अक्षर आता है, अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम्। तो अग्निमीळे जो पहला शब्द है उसी में अड़ा अक्षर का प्रयोग है, आप देख सकते हैं। इन सभी अक्षरों की विशेषता क्या है कि यहाँ पर जीभ का मुख के अलग अलग भागों से बिल्कुल अल्प मात्रा में स्पर्श होता है। उच्चार करके देखिए, य, जीभ पास से गुजरता है लेकिन छूता नहीं है। य, र में मूर्धा ऊपर की तरफ छूता है बिल्कुल हल्के से, ज्यादा छू लिया तो ट उच्चार होता है, कम छुआ तो र। उसी जगह पे ट और र एक साथ उच्चार करके देखिए, ट, र। जीभ वहीं पे जाता है, केवल कम मात्रा में स्पर्श होता है तब र का उच्चार होता है, पूर्ण स्पर्श होता है तभी ट का उच्चार होता है। यही बात है। य के लिए आप च की तरह है, ये तालव्य अक्षर है, च, य, च, य। च के लिए जहां जीभ स्पर्श होता है वहीं के पास से गुजरता है तब य का उच्चार होता है। ल दंत्य अक्षर है, जैसे कि त, थ, द, ध, त, ल, त, ल। त में आप दांतों के ऊपर जीभ से जोर से दबाव देते हैं तब त का उच्चार होता है, और ज्यादा देर तक दोनों एक दूसरे के साथ स्पर्श में रहते हैं। ल के लिए बिल्कुल जीभ दांतों को छू कर निकल जाता है तब ल का उच्चार होता है। नहीं तो त और ल में बिल्कुल बहुत करीबी अक्षर हैं ये, त, ल। एक ही जगह से जीभ और दांतों के बीच में स्पर्श होता है, केवल त के मामले में ज्यादा स्पर्श होता है, ल के मामले में हल्के से छू कर निकल जाता है, इतना ही अंतर है। व, ये दंत्य ओष्ठ्य अक्षर है, दांतों और होंठों के बीच का व, या इसे ओष्ठ्य अक्षर भी कहा जा सकता है, व। इस तरीके से इसका उच्चार किया जा सकता है व अक्षर का। उसके बाद और 4 अक्षर हैं, श, श, स और ह। इनमें बिल्कुल भी स्पर्श नहीं होता जीभ और मुख के अलग अलग भागों के साथ, लेकिन पास से गुजरना होता है, लेकिन स्पर्श नहीं होता, गैप रहता है। यहां पर अगर आप देखेंगे श, अभी कभी कभी यहां पर एक विशेष बात, श और श, यानी कि जो शलगम या शंकर का श है और जो षटकोण का श है, इनमें अंतर कभी कभी करना मुश्किल हो जाता है। जैसे ऋषि, ऋषि में षटकोण वाला श है, शंकर में शंकर वाला श, साधारण श है। इन दोनों में अंतर कैसे किया जाए, इसके लिए भी आप देखेंगे श अक्षर जो है वो च वर्ग के सामने आता है, यानी कि जैसे च का उच्चार करते हैं उसी तरह श का करना है। श में केवल स्पर्श नहीं होता, च में स्पर्श होता है जीभ और मुख के भागों के पास। आप दोनों साथ में बोल के देखिए, च, श, च, श, च, श। ちゃ、しゃ、ちゃ、しゃ、ちゃ、しゃ。 च, श, च, श, च, श, च, श। ちゃ、しゃ、ちゃ、しゃ、ちゃ、しゃ、ちゃ、しゃ。 च, श, च, श, च,
यह अक्षर श अक्षर है, शंकर श। अभी जो श अक्षर है, षण्मुख या षटकोण वाला श, उसका उच्चार कैसे करेंगे? आप देखेंगे श अक्षर ट वर्ग के सामने आता है, इसलिए आप कर सकते हैं त श, त श। एक दो बार करके देखिए, जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा ठीक ठाक। त श, त श। अब जब आप उच्चार कर रहे हो, ट के लिए जीभ पीछे की तरफ मुड़ता है, उसी तरीके से श का उच्चार करना है। वह होता है षटकोण वाला श। शलगम या शंकर वाला श साधारण होता है, जीभ सरल रहता है। श श श श श श। तो ट और श का साथ में प्रैक्टिस करने से श का उच्चार अपने आप सुधर जाता है। उसी तरीके से च और श का साथ में प्रैक्टिस करने से शंकर श का भी उच्चार पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। बहुत बार लोग दोनों शंकर श और षण्मुख श के लिए एक ही श उपयोग करते हैं। विशेषता जो उत्तर भारत से हैं, जो जिनकी मूल भाषा उत्तर भारत से है, वो लोग दोनों जगह शंकर श का उपयोग करते हैं, अगर ये बात सीखी नहीं हो तो। और दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो दोनों तरफ षण्मुख श का उपयोग होता है। शिवा, ऐसा शिव का उच्चार होता है, परंतु शिव में श शंकर श और यहाँ पे श। शंकर श को तालव्य श बोलते हैं, जो तालु के पास से उसका उच्चार होता है। षटकोण वाले श को मूर्धन्य षटकार बोलते हैं, मूर्धन्य श श श। जीभ का पोजीशन हाथ से दिखा रहे हैं, श श श श। उच्चार में अंतर आपको ठीक ठाक सुनाई दे रहा होगा, ऐसा एक अनुमान है कि श और श, इन दोनों में उच्चार में काफी अंतर होता है। अपने उच्चार में यह अंतर लाना थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जरूर कीजिएगा। च और श साथ में बोलिएगा, त और श साथ में बोलिएगा। थोड़े दिनों में ये बिल्कुल सही तरीके से दोनों अलग अलग उच्चार श और श का आपको आ जाएगा। दंत्य स तो सभी जानते, स ये अलग है। यह भी दंत्य अक्षर है, यानी कि दांतों के पास से जीभ गुजरती है, लेकिन दोनों में स्पर्श नहीं होता। उच्चार करके देखिए, स स। टच कर दिए तो त हो जाता है, त स त स त स। स के लिए थोड़ा अंतर रखना पड़ता है, इतना ही अंतर है इन दोनों में। ह कंठ्य अक्षर है, कंठ से इसकी निर्मित होती है, ह ह। और ये महाप्राण अक्षर है, बहुत सारा सांस यहाँ पर बाहर फेंका जाता है। ह तो हकार भी कंठ्य वर्ग से वैसे मेल रखता है, परंतु ये सारे अवर्गीय अक्षर अक्षर कहलाते हैं, य र ल व ळ और श श स ह। इनके अलावा तीन विशेष ऐसे अक्षर हैं जो कि संयुक्त अक्षर हैं, यानी कि दो अक्षरों के मिलन से बनते हैं। ऐसे बहुत सारे संयुक्त अक्षर हैं संस्कृत भाषा में, परंतु ये तीन विशेष इसलिए क्योंकि बहुत बार पाए जाते हैं और इनका उच्चार में कभी कभी इनके उच्चार में कभी कभी तकलीफ होती है। तो इन तीनों पर थोड़ा सा गौर करेंगे और फिर साई सुधा जी आगे का सूत्र आगे लेके चलेंगी, संधि नियमों के बारे में बताएंगी। परंतु यहाँ पर विशेष तीन अक्षर जो हैं, पहला है त्र, जो त और र के मिलन से आता है, त प्लस र, त्र। जैसे कि त्रिकोण, या यहाँ पर उदाहरण है त्राता, तो त्र होता है। यहाँ पर इसको अलग उच्चार नहीं देना है, त्र उच्चार करना है। उसी तरीके से दूसरा है ज्ञ। ज्ञ, इसका उच्चार बहुत अन्य अलग अलग प्रकारों से होता है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में इस अक्षर को अलग अलग रूप से भाषा के अंदर समावेश किया गया है, और वही जो अपनी मातृभाषा में लोग सीखते हैं उसमें अंतर बहुत बार पाया जाता है। कुछ प्रांतों में ज्ञ कहा जाता है, जैसे कि ज्ञानी, कहीं पे ज्ञानी, कहीं पे ज्ञानी, कहीं पे न्यानी। तो न्या, ज्ञा, ज्ञा,
ये अलग अलग उच्चार होते हैं। इनमें से सही उच्चार कौन सा है, इसे कैसे पहचाना जाए? यहाँ पर बहुत ही मूल बात, बहुत ही जरूरी बात यह है कि यहाँ पर जो दो अक्षर का मेल है, ज और ञ, ञ अक्षर जो है वो पांचवा अक्षर है उसके वर्ग का, च छ ज झ ञ। और पांचवे अक्षर के बारे में हमने क्या देखा? अनुनासिक अक्षर होता है, उसमें नाक का प्रयोग होता है उसके उच्चार में। अब हम बोलेंगे ज्ञानी, क्या बोलने में नाक का प्रयोग नहीं होता, क्या सही तरीके से सुनाई देता है, तो ये सही उच्चार नहीं है क्या, क्योंकि यहाँ पर अनुनासिक अक्षर है, अनुनासिक उच्चार होना चाहिए। ज्ञानी, ज्ञा, ज्ञा, ज्ञानी उच्चार करते समय नाक के ऊपर दबाव आता है। ज और ञ, नाक के माध्यम से ध्वनि निकलनी चाहिए। ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, न्यानी नहीं, क्योंकि न्या में दूसरा अक्षर है य, जो कि अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक अक्षर है ज्ञानी, यही सही उच्चार है। प्रैक्टिस जरूरी है, चाहिए तो कभी सुनिए कि कैसे इसका उच्चार होता है और धीरे धीरे उसका नकल करते करते ये आ जाता है। परंतु अपने मूल भाषा यानी कि हर एक व्यक्ति की मातृभाषा जो होती है उसमें इस अक्षर का विशेषता उच्चारण अलग हो सकता है। तो ज्ञानी जो संस्कृत में उच्चार है उससे अलग हो सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भगवत गीता में ज्ञान शब्द का बहुत बार उपयोग है, वेदों में बहुत बार उपयोग है, तो ये जरूर समझना जरूरी है। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात, विज्ञा, ज्ञा, ये उच्चार है, नाक के माध्यम से ध्वनि निकलनी चाहिए, बहुत जरूरी बात। तीसरा संयुक्त अक्षर जो हम देख रहे हैं वो है क्ष, क और षटकोण श का या षण्मुख श का मिलन। तो यह क्षेत्रीय ऐसा नहीं है, क्षत्रिय, क्ष। ये बहुत ही वैज्ञानिक बात है। क का उच्चार करते समय जीभ बिल्कुल ज्यादा फैला हुआ नहीं रहता मुख के अंदर। आप क का उच्चार करके देखिए, क बोलते समय जीभ का उच्चार नहीं कर सकते, जीभ को ऐसा खुला रखेंगे तो उच्चार नहीं कर सकते, जीभ बिल्कुल ऐसे सिकड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसे बंद एक तरीके से होता है क। और उसके बाद तुरंत षटकार का उच्चार करना है तो क्या होता है, जो बंद जीभ खुलते समय मूर्धा को छूते हुए निकलता है, इसलिए क्ष। वैज्ञानिक बात है, इसमें कुछ ऐसे ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। क का उच्चार सही कर रहे हैं तो उसके बाद श का उच्चार करने की कोशिश करेंगे तो षण्मुख श ही निकलेगा। क्ष, क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्ष, इस अक्षर का उच्चार है क और श, इन दोनों के मेल से होता है, ध्यान रखिए। साई राम। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, आपका और समय नहीं लेता। और साई सुधा जी अभी आगे की बातें जो हैं अनुस्वार और विसर्ग, जो स्वर अक्षर में दो अक्षर रह गए थे, अम और अ, इनके बारे में आपको बताएंगे। साई सुधा जी प्लीज। साई राम। साई राम, थैंक यू सिद्धार्थ। ओके, अभी जो बाकी के दो अक्षर है लास्ट वर्णमाला के वोवेल्स में, वो है अम एंड अह। अम यानी इसको अनुस्वार बोलते हैं। अभी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो जब भी जुड़ता है अलग अलग अक्षर से तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग होता है, तो हम लोग वो देखते हैं। अभी यहाँ पे सिद्धार्थ ने आपको अभी जब बताया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं। सो क वर्ग में क्या आते हैं, क, ख, ग, घ एंड न। तो अभी जब भी ये अनुस्वार अम है, वो जो अम कोई भी अक्षर which starts with the letter क, तो अम क के साथ जुड़ने से द अनुनासिक साउंड जो है
वो है ng. नाउ फॉर एग्जाम्पल शंकर, अभी इट इज शम और कर, तो ये शम जो है वो अनुस्वार है, उसके बाद जो वर्ड है वो है कर. तो ये वर्ड में फर्स्ट अक्षर क्या है? क है. तो जब भी हम क के साथ जुड़ते हैं तभी क्या प्रोनाउंसिएशन होगा ये हम कैसे देखते हैं? ये जो वर्णमाला अभी हमने देखा, क वर्ग में जो लेटर्स है क, ख, ग, घ, ये जो क वर्ग के लेटर्स के अनुनासिक साउंड जो है न, तो वो आएगा वो अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन. फाइन. सो नेक्स्ट वन इज च वर्ग. जब भी अनुस्वार अम के साथ जब भी च वर्ग के कोई भी अक्षर आने से क्या होगा? च, छ, ज, झ, ञ. ओके, सो पुरुषम जगत, वो क्या होता है? पुरुषं जगत. न और ञ में फर्क है. न आते हैं कौन से वर्ग में? त वर्ग में. लेकिन ये जो है ये न नहीं है, ये ञ है. च, छ, ज, झ, ञ. तो पुरुषम के बाद वो जगत वर्ड में फर्स्ट लेटर है ज. सो ज का ज कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग में. उसमें अनुनासिक साउंड क्या है? ञ. सो दैट इज व्हाई पुरुषम जगत होता है पुरुषं जगत. एंड द नेक्स्ट वन इज ट. ट वर्ग में क्या है अक्षर? ट, ठ, ड, ढ और उसका अनुनासिक साउंड है न. अभी ये जो अनुनासिक साउंड है, जहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्म वाले वो कॉलम में दिखाई देता है, वो सब अनुनासिक साउंड है, यानी कि वो नोज से आना चाहिए. तो न जो बोलते हैं वो न अनुनासिक नोज से आता है. ये जो अनुनासिक साउंड हम लोग बोलते हैं तभी ये जब भी प्रोनाउंस करते हैं, एक्चुअली देयर इज अ सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन इन द नोज. वो जब भी आता है तभी आपको पता चलता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है प्रोनाउंसिएशन. सो च वर्ग का पुरुषं जगत. देन ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, उसका अनुनासिक साउंड है न. तो पंढर, अभी पम है. अभी आप फर्स्ट लेटर अगर लेंगे वो एग्जाम्पल में पम पम है, तो पंढर नहीं बोलते हम लोग. क्या बोलते हैं? पंढर, पंढरपुरी. तो पंढर क्यों आते हैं? क्योंकि प पम के बाद जो नेक्स्ट लेटर है ढ, वो आता है ट वर्ग में. तो ट वर्ग के अनुनासिक साउंड क्या है? न. तो दैट इज व्हाई पंढरपुर नहीं बोलते हैं, पंढरपुरी बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज त वर्ग. अभी त वर्ग में क्या सब अक्षर आते हैं? त, थ, द, ध और न. उसका अनुनासिक साउंड है न. तो ये कौन से एग्जाम्पल में है? अभी दुर्गान देवीगम, ये दुर्गाम है और देवीगम दो सेपरेट वर्ड्स है. तो दुर्गाम गाम इज अनुस्वर. तो उसके बाद कौन सा लेटर है? देवीगम है. पहले लेटर क्या है? दे है. तो ये दे जो है द कौन से वर्ग में आता है? द आता है त वर्ग में.
यानी कि त, थ, द आता है त वर्ग में। सो त वर्ग का अनुनासिक साउंड क्या है? न। सो दुर्गान देवी गम, दुर्गाम देवी गम होता है दुर्गान देवी गम। आगे ये जो हमने अभी पहले देखा क वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, ये सब है वर्गीय, जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया। अभी हमारे जो लेटर्स है वो देर आर अ फ्यू अवर्गीय लेटर्स। सो ये अवर्गीय लेटर्स में अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन कैसे आता है? अभी अम के बाद अगर कोई भी अक्षर प वर्ग से है तो प वर्ग में कौन कौन से अक्षर है? प, फ, ब, भ और उसका अनुनासिक साउंड है म। सो प वर्ग के कोई भी अक्षर के साथ जब भी अनुस्वार के दो वर्ड्स है तो उसका संधि जो है, संधि यानी मिलन है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो अक्षर, दो जो अक्षर मिलते हैं, जब भी दो अक्षर मिलते हैं तो उसको एक कंबाइन अक्षर होता है। जैसे यहाँ पे है परमम पदम, तो जब भी हम लोग चांट करते हैं परमम, मम जो है अनुस्वार, उसके बाद का जो लेटर है प है, तो प लेटर प वर्ग का है, तो प वर्ग में अनुनासिक साउंड क्या है? म। तो इसीलिए परमम पदम को क्या बोलते हैं? परमम पदम। दैट म ही अम ही है उसका साउंड, वो चेंज नहीं होता। सिमिलरली जब भी कोई अनुस्वार के बाद र अक्षर है तो र अक्षर या फिर श अक्षर या फिर स अक्षर होने से वो उसका अनुस्वार का साउंड अम ही होता है, वो चेंज नहीं होता। तो जैसे सोमम राजानम, तो सोमम राजानम होता है, उसको साथ में जब भी हम लोग लिखते हैं वो होता है सोमम्रा, म्रा, म्रा होते हैं, तो वो भी उसका साउंड क्या है? अम ही है। तो ये जब भी प वर्ग के है या फिर र, श और स के साथ जब भी कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है अनुस्वार के बाद, तभी अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन म या अम ही होता है। जैसे परमम पदम, सोमम राजानम, सोमम राजानम। ओके, द नेक्स्ट वन इज अम के साथ कोई भी अदर लेटर्स, जैसे य हो। अभी आप देख सकते हैं वो फर्स्ट वर्ड जो है दैट इज त छम यो, तो ये तच्छम यो क्या होता है? उसका प्रोनाउंसिएशन होता है जो लेटर है अनुस्वार के बाद उसी लेटर का अनुनासिक साउंड होता है। जैसे तच्छयो, तच्छम यो होता है तच्छयो। नेक्स्ट इज समलग्नम, वो सम के बाद है ल, तो इस ल का ये जब भी ल आता है अनुस्वार के बाद तभी ल का ही अनुनासिक साउंड होता है। जैसे संलग्न, तो वो जो अनुस्वार के बाद जो आता है वो जो अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन डिपेंड होता है अनुस्वार के बाद वाले लेटर। तो वो अगर अवर्गीय का है और अगर वो लेटर्स है य, ल या व, तो
अनुनासिक साउंड ही आता है वही लेटर्स के। नाउ नेक्स्ट है संवाद। तो संवाद क्या होता है? संवाद, संवाद व ही रहता है, लेकिन व का वो प्रोनाउंसिएशन अनुनासिक नेसल होता है। तो ये तच्छम यो संलग्नम और संवाद अनुस्वर के हिसाब से हम लोग अगर प्रोनाउंस करें तो कैसे होता है? तच्छयो संलग्नम और संवाद, ऐसे होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, हाँ, ये जो है विसर्ग है। विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग इज द लास्ट लेटर इन अवर वर्णमाला दैट वी सॉ, वो है अह। अह बोलते हैं इसको, जैसे नमः बोलते हैं हम लोग। सो अह, सो अह विसर्ग जब भी होता है उसका भी प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। वो विसर्ग के बाद वाला अक्षर जो है उसके हिसाब से प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। नाउ द फर्स्ट वन इज कॉल्ड विसर्जनीय, जो कोई भी लाइन के एंड में आता है। तो नमो नमः जब भी लाइन के एंड में आता है तो उसको हम लोग विसर्ग, जो ओरिजिनल उसका साउंड है वही साउंड में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे नमो नमः तनुभिः, तो ये जब भी एंड में, लाइन के एंड में विसर्ग आता है तो हम लोग उसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट इज जिह्वामूलीय, दैट इज विसर्ग के साथ अगर क या ख। नाउ एग्जाम्पल में है नम नमः प्लस कालाय। तो हम लोग चैंटिंग के टाइम ये जब भी बीच में आते हैं ना विसर्ग, तो हम लोग नमः कालाय नहीं बोलेंगे, उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? नमः प्लस कालाय। तो क्या होता है? क इज द फर्स्ट लेटर, तो विसर्ग के बाद जब भी क फर्स्ट लेटर या फिर ख फर्स्ट लेटर होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है नमः कालाय, नमः कालाय। दैट एस्पिरेटेड साउंड आना चाहिए। जैसे सिद्धार्थ ने बताया, हमारा जो महाप्राण शब्द होता है तभी वो एस्पिरेशन होता है। तो हम लोग हाथ रखने से ह घ भ ऐसे जब भी बोलते हैं तो जो हवा बाहर आते हैं वैसे। तो इसमें नमः कालाय, तो पूरा एयर ऐसे बाहर आना चाहिए जब भी हम विसर्ग को क या ख से पहले प्रोनाउंस करते हैं तब। नमः कालाय। नेक्स्ट वन है प या फ। जब भी विसर्ग के साथ कोई भी अक्षर जो प से स्टार्ट होता है या फिर फ से स्टार्ट होता है तो उसमें एक फ साउंड ऐड होता है। जैसे हमारे सर्वदेवता गायत्री में है, ऑल द प्रोनाउंसिएशंस जो आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है रुद्रफ प्रचोदयात, रुद्रफ, इफ साउंड आना चाहिए, वो एकदम क्लियरली आना चाहिए, रुद्रफ प्रचोदयात। ऐसा प और फ का है। सो अगेन विसर्जनीय क्या होता है? जब भी एंड में आता है विसर्ग तो उसको नमो नमः इस बोलते हैं। और जिह्वामूलीय के जो है वो है विसर्ग के बाद जब भी क या ख आते हैं तो उसका साउंड होता है सो नमः, नमः कालाय। फिर थर्ड है उपध्मानीय, उसमें आप ये नाम
इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये सब नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर चैंटिंग वेदम। तो जब भी विसर्ग के बाद जब भी प या फ आते हैं तो साउंड आना चाहिए फ। सो रुद्र प्रचोदयात् ऐसे आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। इसमें है अभी जो अह यानी कि विसर्ग के साथ जब भी हमको जोड़ना है एक लेटर जो ओ है, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली हमें दिस वी डोंट हैव टू रिमेंबर, बिकॉज हमारे जो भी टेक्स्ट है वैदिक टेक्स्ट ये ऐसे ही वो प्रिंट होके आता है, लेकिन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ये जो यहाँ पे हम लोग ये बता देंगे कि अभी फॉर एग्जाम्पल नह भवतु जो होता है, नह प्लस भवतु, तो वो होगा नो भवतु, नो भवतु। सिमिलरली इंद्रः प्लस ददातु becomes इंद्रो ददातु। ओके, सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स दिया है, लेकिन हमारे जब भी व्हेन वी आर चैंटिंग ये जो विसर्ग के साथ जब भी घोष व्यंजन जब भी ऐड होता है वो हमारे टेक्स्ट में ऐसे ही प्रिंट होके आता है, तो दिस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस मच, it's only for your information that this is being mentioned here. Now next is विसर्ग के साथ जब भी एक वोवेल आता है, सो फॉर एग्जाम्पल यह आत्मदा, वो क्या होता है, ऐसे आने से जब भी य के साथ विसर्ग है और उसके बाद आ आते हैं, वोवेल आते हैं, तो क्या होता है, य आत्मदा, वो विसर्ग निकल जाता है। वो हम लोग को वो विसर्ग के बहुत सारे रूल्स है, जब भी एक छोटा वोवेल बड़ा वोवेल के साथ आने से क्या होता है और दो छोटा होने से क्या होता है, वो सब अलग अलग रूल्स है। सो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, बिकॉज फॉर अस इट इज देयर रेडीमेड इन आवर टेक्स्ट। सो आवर मेन एम इज to chant the hymns correctly. जो जिनको इंटरेस्ट है ज़्यादा लर्न करने का, वो डेफिनेटली यू कैन गूगल अबाउट द संधीस, द विसर्ग संधीस, उसमें सारे अक्षरों के जो जोड़ने से क्या होता है, क्या चेंज होता है या फिर क्या नया वर्ड आता है, उसके बारे में दिया है, लेकिन हमें अभी यहाँ पे टेक्स्ट में सब कुछ रेडीमेड है। नाउ नेक्स्ट इज स्वस्ति ही और अस्तु, तो इसके साथ र जुड़ता है, तो ये होता है स्वस्तिरस्तु। दीज आर द वर्ड्स विसर्गा फॉर ये जब भी घोष व्यंजन या फिर स्वरा या फिर ये स्पेशल वोवेल जो आता है तभी। Now next one is जब भी विसर्ग के साथ च, छ या श आता है, this also is given in the text, so we don't have to worry about this so much. ओजः के साथ च आने से ओजश्च होता है, यानी च, छ और श आने से वो जुड़ता है with the letter sh, so ओजश्च। नमः शंभवे होता है नमः शंभवे, तो जब भी श है वो डबल होता है, नमः शंभवे। देन विसर्ग के साथ जब भी ट, ठ और श जब भी है तो श का प्रयोग होता है, एंड देन द वर्ड्स आर कंबाइंड। तन्नः
plus Shanmukha becomes Tanna Shanmukha. Okay, so sh के साथ वो श ऐड करके वो वर्ड होता है तन्न षण्मुख. देन नेक्स्ट वन इज जब भी त थ या स है तो इसमें क्या ऐड होता है, स ऐड होता है. जैसे नमस्ते, नमः प्लस ते होता है नमस्ते, और ते के जगह पे अगर स है तो नमस्सहमानाय, तो वो स ऐड होगा. और श नमशंभवे, श विल बी एडेड, और तन्न षण्मुख. तो ये है ये सब लेटर्स के. अभी एक है जो विसर्ग के साथ अगर क्ष आते हैं. क्ष इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क और श, लेकिन जब भी क्ष क्षमा वाला क्ष आते हैं तो ये सारे रूल्स के एक एक्सेप्शन है. क्ष में क्या होता है, उसमें विसर्ग इवन दो इट कम्स इन बिटवीन द लाइन, वो विसर्ग को विसर्ग के जैसे ही प्रोनाउंस करता है जैसे विसर्जनीय हम प्रोनाउंस करते, वैसे ही ये क्ष के पहले जब भी विसर्ग आते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे नमकम में फोर्थ अनुवाका में है नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च. सो यहाँ पे महद्भ्यः क्षुल्ल ऐसा ही आएगा. वो विसर्ग को महद्भ्यः ही बोलना है, महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च. सिमिलरली एक और लाइन है दैट इज नमः क्षत्रिभ्य. सो यहाँ पे भी जब भी क्ष है तो उसको हम लोग को ऐसे बोलना है नमः क्षत्रिभ्य. तो ये एक एक्सेप्शन है, और दिस इज हाउ द विसर्गा एंड द anuswara are pronounced. So Sai Ram, thank you everyone for having listened to all this patiently. अभी आपको अगर कुछ questions है तो please पूछ सकते हैं. We have 10 minutes, right? Yes, 10 minutes. सिद्धार्थ, आपको कुछ ऐड करना है जो मैंने बोला है, प्लीज. नहीं, ओनली थिंग इज दैट एक ही चीज था, छोटी सी बात है. जैसे ये अह प्लस घोष व्यंजन की जो बात थी, नो भवतु या इंद्रो ददातु, ये विशेष ये बात बताने के पीछे हेतु ऐसी है कि हम बहुत बार तोड़ते हैं प्रोनाउंस करते समय, तो नमो के बाद तोड़ना नहीं है क्योंकि वो एक्चुअली नमः है, और हम लोग नमो पे तोड़ रहे तो कुछ थोड़ा गलती होता है. सीखते समय ये सब हम गलतियां करते हैं, परंतु मेन चैंटिंग में बहुत सारे जगह पे हम तोड़ नहीं सकते, मतलब सेंटेंस के बीच में रोक नहीं सकते. तो वो ध्यान में रखने के लिए ये सब बातें विशेष बताई गई, जैसे कि यह आत्मता या यह आत्मता, ये सब चीजें इसीलिए बताई गई कि गलत जगह पे नहीं तोड़ना है. इसी साईराम. कोई हैंड रेस कर रहा है, श्री राम जी, बोलिए सर. साईराम. साईराम, स्मॉल एंड हम्बल रिक्वेस्ट, ये जो स्लाइड्स अभी साईराम ने दिखाया हमको, तो वी हैव नोटेड, बट सम टाइम if you can, and if it is possible, and if it is not okay, or if it is okay for you, can you please share it with our gurus, Samiti gurus, if not to the individuals? Sir, means this video will be there on YouTube and we'll send the link to everyone. Oh, okay. Video, video will be there. The whole meeting is being recorded, so with the explanation, the video will be there, including the PPT. It will be there on. Okay, sometime I missed the class because it's a working day for me. Today I'm just bunk karke aaya. No, sir. Last 4 classes are also there, and this is the 5th one. All are there on YouTube. So we'll reshare the link on all the groups so that it will come to. Thank you, Siddharth. And
privately, for example, I wanted to talk to you regarding certain clarification, no? So not in a forum. I want to personally, regarding Vedam only. Can you please share your phone numbers? Phone number, your means if you can contact your Samiti, who is the Veda in charge, they'll be having my number. Rohini madam will be giving now. Yeah, she'll be having my number. You can. Okay, thank you. Thank you. Sairam. तन्वी जी, आप कुछ कह रहे थे शायद. सिद्धार्थ, वन डाउट. यस सर. सिद्धार्थ जी. यस सर, यस सर. हाँ जी सर, बोलिए प्लीज. सिद्धार्थ जी. यस सर. कृष्णा पिंगलम का क्या आता है? पिंगलम लिखा है उधर. पिंगलम बोलने का पिंगलम बोलने का. कृष्णा पिंगलम करके बोलता है जनरली, लेकिन पिंगलम लिखा है श्रुति में. क्या बोलने का? हाँ, very nice question, and there was a lot of healthy debate on this, and there is no correct answer to this, but in Yajurveda, Ala Akshara is not there at all. Sairam, am I audible? Sairam? You are audible. Somebody else is on unmute. Yes, that is okay. That's, audible. Yeah. So in Yajurveda, there is no Ala Akshara actually. It is there only in Rigveda, but there is a colloquial this thing, because especially in south of India, where Rigveda and Yajurveda both traditions are very active. Sringeri for Rigveda and Kanchi for Yajurveda. Someone is traveling and chaya ka sunai de raha hai. So yeah, so that Ala as an alphabet in all South Indian languages, it is there, and in Rigveda it is there. Therefore, even in Vedic context, it is used quite commonly, Ala Akshara. So it has come into common usage for Krishna Pingalam, but according to pure Yajurvedic context, it is Krishna Pingalam only. It is La, not Ala. But colloquially or due to regional influence, one can say, influence of the regional language, Krishna Pingalam is very common. And many Vedic scholars also, they are divided in their opinion on this. But as far as within Satya Sai organization is concerned, and the Vedic study, whatever our main team is spearheading that, one of the members is actually learned from Kanchi Matham. So he consults his Guruji and then comes back to us with the reply. So according to him, Krishna Pingalam is only correct. Krishna Pingalam is a regional influence in many states. So the correct pronunciation for Yajurvedic context is Krishna Pingalam only, not Ala. Sairam. This is the short answer to that question. Sairam. अगर और किसी को कोई प्रश्न है या क्वेश्चन, यू कैन आस्क. साईराम. सिद्धार्थ सर्वमंगल मांगल्ये. Is that the question? Okay. Again, interesting question. Shri Suktam, in all traditions, the original comes from Rigvedam. So there, I have not asked this question to anyone, and in my personal capacity, I will not say that anything is wrong. Sarva Mangala, it can be. Mangalye, it can be. Ada also, La also. One has to look into the detail, but there is no, it is a text from the Rigvedam. Shri Suktam. So very much Ala is possible. It is not impossible. I would not like to comment further, but you can ask and return a reply at a future date. Sairam. Okay. और ये वीडियो सभी के साथ शेयर किया जाएगा. जिस चैनल पे ऑलरेडी पहले 4 वीडियोस हैं उसी पे है, और उसका लिंक दोबारा एक बार हम सारे ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं, जिससे कि सभी इसका लाभ ले पाए. एंड
एंड डेफिनेटली कोई क्वेश्चन है तो जरूर उसमें भी आप रिप्लाई सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं यूट्यूब में, वहां से भी हम देखते रहते तो रिप्लाई करेंगे। अभी कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। साईराम सिद्धार्थ। हाँ जी, साईराम। साईराम। हाँ, अल्प प्राण एंड महाप्राण, इसमें जो च छ एंड ज तो हमें कैसे पता चले कि आप बोले ना हवा बाहर आनी चाहिए मुंह से, हाँ तभी मालूम पड़ेगा कि अल्प प्राण है। वही मुझे क्वेश्चन था कि अल्प प्राण और महाप्राण उसमें डिफरेंट क्या है? सांस ज्यादा बाहर आता है। आपने च छ ज झ का एग्जांपल दिया ना। हाँ ये हाथ सामने रखिए और बोलिए पूरा लाइन, च छ ज छ और झ में ज्यादा हवा आता है हाथ पर ना। हाँ इसलिए उसको महाप्राण बोलते हैं। और अल्प प्राण मतलब कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि मतलब कभी किसी ने बोला कि आपका महाप्राण ठीक से नहीं आ रहा है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए वो वर्ड भी क्लास में बताया। और अगर आपको कंफ्यूजन है हम सही उच्चार कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे हाथ रख के देख सकते हैं कि उच्चार सही हो रहा है कि नहीं। यस यस यस। और उसमें और एक विशेष बात आपने बताया इसलिए याद आया, मराठी में च छ ज झ होता है लेकिन संस्कृत में च छ ज झ होता है, तो वो भी उच्चार ठीक करना पड़ता है। हर एक प्रांतीय भाषा में कुछ ना कुछ रहता है जो संस्कृत से मेल नहीं करता है। मराठी में ये है, हिंदी में वॉवेल्स को लेके गड़बड़ होता है, गुजराती में रू को लेके गड़बड़ होता है, कृष्ण कृष्ण ये उच्चार होते हैं, लेकिन कृष्ण ये कृष्ण बोलने से ये दोनों किनारे पास आते हैं, कृष्ण बोलने से दूर जाते हैं। दोनों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए दोनों कोने होंठ के। कृष्ण 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 नहीं होना चाहिए, कृष्ण भी नहीं होना चाहिए। एक बार मैंने दो लोगों का सुना था, वो लोग डिस्कस कर रहे थे, एक बोल रहे कृष्णा होना चाहिए, दूसरा कृष्ण होना चाहिए, दोनों भी नहीं होना चाहिए, बीच में मिडिल पार्ट होना चाहिए। कृष्ण कुछ नहीं हिलना, होंठ हिलना ही नहीं चाहिए, सिर्फ रू का उच्चार अंदर से आना। कृष्ण 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 बोला तो वो दूर जाता है, कृष्ण बोलने से नजदीक आता है। ये कॉर्नर ऑफ द लिप्स, आप ऐसा वी शेप में हाथ रखे इधर टच कीजिए और आप कृष्ण बोलिए। अगर आप कृष्ण बोलेंगे तो ये दोनों दूर जाएगा, आपको महसूस होगा, और कृष्ण बोलेंगे तो दोनों नजदीक आएगा। सो यू हैव टू अवॉइड बोथ। ऐसा पकड़ के रख के कृष्ण कृष्ण ऐसा प्रैक्टिस कर तो आएगा, रू आएगा। ऐसे हर अक्षर के पीछे इतने सारे वेज टू डू इट, ऐसा है बहुत सारा। बंगाली में व और ब में अंतर करना मुश्किल होता है, श और स में अंतर करना मुश्किल होता है, तो वो धीरे धीरे सीखना पड़ता है। वो मूर्धन्य अक्षर है और ये दंत्य अक्षर है, वो देख के सीखना पड़ता है धीरे धीरे। फॉर एवरीवन इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। Okay. Yes, Priya ji has raised her hand. Yes, Priya ji. Sairam, just the Yajnena Kalpatam pronunciation. Yajnena Kalpatam. Yajnena. Yajnena Yajnyama Yajanta Devaha. Yajna. Jna. The sound should come from the nose. That is the only way which I can describe. I can pronounce it 10 times on mic. Jna, jna, jna. But other than that, like Sai Sudha ji also said, the sound will cause a vibration in the nose. So you will clearly come to know that the nose is part of the pronunciation. So the sound won't be heard in that. Sorry? The sound like yajna, like that won't be heard. Yajna. No, it is a combination of ja and nya. Nya. So it is yajna. If I close my nose, it will come differently. It will not come out only because that sound is coming out from the nose. If I close the nose, nothing comes out. Sound only doesn't come out because it is supposed to come out from the nose. It is that cha cha ja ja nya, that sound, no, more stress on that basically. Yajna, like that. It is very difficult to describe actually. But thank you very much. Yeah, it is yajna. That cha cha ja ja nya, that last letter which is there, just stress on that. More or less that is the sound which is expected. Yajna. Yajnena yajnyama yajanta devaha.
or example which you gave, prano yajnena kalpatam, chakshur yajnena kalpata, gashrotrang yajnena, that yajna, nya, every time that nya is there. That is there. Continuing with that, Siddharth. Yes, Saira. Pronounce the j or you pronounce It is a ja and nya at the same time, not one after the other. In other Sanyukta Aksharas, there is one which is first and then second one is later. Here, both of them together. It is like trying to pronounce ja only, but through your nose, basically. It is like that. It doesn't become girl, or it's only j. You have to say nya. Nya. Yes. Jna, Jnaneshwar, Jnaneshwari, Jnan, Nahi Jnanena Sadrisham. Jna. Just many times with practice it will come. That's all. And there will be a significant stress on the nose while pronouncing that letter. If that stress is not there on the nose, means something somewhere is little bit wrong. That is the warning sign about Jna. Sairam. Sapna ji has raised her hand. Yes, Sapna ji, bataiye. Sairam. Sairam, I would request to make a booklet of this, what is taught today, na? If it is shared as a booklet to all the Samiti like level, print out leke, na? I think it will be very useful for children also, Balvikas children also. If we have to teach them grammar, wo grammatically सिखाना है तो हमारे पास स्क्रिप्ट होगा तो it will be easy to. It is just a suggestion, ना, please, Sairam. हाँ जी, नहीं, बहुत अच्छा सजेशन है, जरूर करेंगे ऐसा. 15-20 पेज का बुकलेट आएगा, but it will be very handy actually, because it has all the basis, how it has to be taught, how it has to be. It is a very useful session. Definitely we'll take it up and try to give it as soon as possible. Because mobile में ना, if you have a PDF form also, you can't have it handy every time. When you teach children now to online classes, it's okay, we can manage. Offline classes, we need that. We will try to do something definitely. We noted your request and definitely we'll try to do something. Very well conducted. This session was very useful, Sairam. Thanks to the team. के आगे अगर अनुस्वार आया हो के पहले तो कैसा प्रोनाउंस करेगा? संहार. हाँ का ही मतलब जुड़ा हुआ बात. एक उदाहरण शायद रहेगा. संहार ऐसे आएगा. संहिता ऐसे आएगा. धन्यवाद. का मतलब जो क ख ग घ का एक्चुअल उच्चार होगा ह के पहले, उसी वर्ग में आता है. इसी मुझे लगता है समय हमारा बिल्कुल सही चल रहा है. अभी हमको ओम शांति करना. साई सुधा जी, हाँ कीजिए. यस प्लीज. बिकॉज 6:50. हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तुरंत एक लास्ट क्वेश्चन वी कैन टेक एंड देन. हाँ जी बताइए. How is this pronounced? Rajadi Rajaya Prasahya. Prasahya. Ha plus ya. Here. There is no nasal sound. It is both kantha and ya. Here. 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 It is he plus a. Here. Here. Yes. Here. Sairam. Thank you. Sairam. I think this same Zoom is required for another meeting, so we'll stop here. The YouTube link is not yet generated, Sairam, but we'll post it on all the WhatsApp groups which we have, and we'll ask everyone to please pass it on so that everyone is able to. सिद्धार्थ जी, अगर आप WhatsApp में डालेंगे हमको नहीं आता, पता है क्यों? I don't know why. Please tell me why we are not getting any WhatsApp on this. WhatsApp में तो you need not even depend upon the YouTube or Google or something like that. But only WhatsApp में आएगा तो immediately समिति को, उनका गुरु लोगों को बोलने का कि sir you have to pass it on. You have to. We have a Airoli group. We have a Mulund group Airoli में, sorry Veda में. So उसमें डालने के लिए बोलने का. अभी तक 4 क्लास हुआ मैंने. I was generally asking everybody कि कुछ है तो बता दीजिए, डाल दीजिए. अभी तक कुछ नहीं आया. No problem. It's for we'll try to improve our channels of posting so that it will definitely come to all. We'll try that. Thank you, sir, and thank you.
साईराम सर, साई सुधे जी आप शांति। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय साई राम।